हेलो माय डियर रेजिडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। तो माय डियर रेजिडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ HVDC ट्रांसमिशन. दिस इज द इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7th semester, IKGPTU Kapurthala, and different universities in different semesters as well as in MTech also. So the topic name is choice of converter configuration. Before that, I request you, if you are the student of electrical engineering in any branch across the country in any university, and if you are the faculty member of any engineering college in the Department of Electrical Engineering, kindly subscribe my channel and share with your friends and colleagues to get the advantage of the particular topic wise lectures given by me. So guys, today I am going to start a topic. This is the lecture number 10. Before that, you can watch all these videos according to the syllabus of IKGPTU Kapurthala HVDC transmission in my playlist, and the name of playlist is HVDC transmission. Here I already recorded 9 lectures from up to 2 units. So this is the new topic, choice of converter configuration. After that, I will discuss regarding the different gate circuit, 6 pulse converters, 12 pulse converters, their characteristics, and the features of overlapping and without overlapping. So guys, before that, I request you, if you want to get more knowledge regarding these particular topics, you can refer these books written by great scholars and professors. So guys, without wasting the time, now we can start the topic, and the topic is choice of converter configurations. Generally, the question came is either 2 marks, 4 marks or 8 marks in your semester examination. So this question may be came in 5 marks question or 4 marks question, and the question is just like explain the choice of converter configuration, different configuration of converters like that. So guys, let's start the choice of converter configuration. So here is the first point. For a given pulse number, select the configuration such a way that both the valve and transformer utilization are minimized. Means हमें इस तरह से कन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना है जिससे जो ट्रांसफार्मर है और जो हमारा वो वॉल्व्स है, उसका जो थायरिस्टर वॉल्व्स है, उसका कम से कम हम मिनिमाइज्ड यूज कर सके. In general, converter configuration can be selected by the basic commutation group and so on. Commutation क्या है? Commutation is a process. जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म्स आता है, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेशन. कम्यूटेशन इज ए प्रोसेस टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द थायरिस्टर्स. तो उसमें उस केस में ये आता है टर्म्स. तो हम डिफरेंट बेसिक कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू हम ये कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं ऑफ सच ग्रुप्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. जो थायरिस्टर वॉल्व्स है आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, जो भी होगा उसमें हम कम्यूटेशन, जो उसका बेसिक कम्यूटेशन, जो उसके ग्रुप्स बनाएंगे कि ये वाला ग्रुप्स इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए टर्न ऑन होगा, ये वाला ग्रुप्स इस टाइम के लिए ऑफ होगा, वो सारा कुछ हम लोग बनाएंगे. कम्यूटेशन ग्रुप्स मींस सेट ऑफ वॉल्व्स इन विच ओनली वन वॉल्व कंडक्ट्स एट ए टाइम. अब कम्यूटेशन ग्रुप्स जो जैसे इसमें आप देख रहे हैं 6 हमारे ग्रुप्स हैं, तो 6 ग्रुप्स में से हम 9 ग्रुप्स आप देख रहे हैं 1.1, 1.2, 1.r, 2.1 से लेके 2.r तक है, S.1 से लेके S.r तक आप लोग देख रहे हैं. तो ये जो ग्रुप आप लोग देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स बना हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में, दैट विल बी डिसाइड एज पर एज आवर रिक्वायरमेंट. जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम इसका डिजाइन करेंगे. ये कम्यूटेशन ग्रुप्स में सबसे बड़ी चीज ये है कि एक टाइम पे एक ही थायरिस्टर वॉल्व कंडक्ट होगा, दूसरा जो है वो कंडक्ट नहीं होगा. लेट Q बी द नंबर ऑफ वॉल्व्स इन ए कम्यूटेशन ग्रुप. हमने एक नंबर लिया Q, जो कि नंबर ऑफ वॉल्व्स है इन ए कम्यूटेशन ग्रुप्स में, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 6, जितने भी थायरिस्टर वॉल्व्स हैं. R बी द नंबर ऑफ पैरेलल कनेक्शंस. एक पैरेलल कनेक्शन हमारा होना चाहिए जिसके नंबर ऑफ क्या है, R. S बी द नंबर ऑफ सीरीज कनेक्शन. अगर R और S को मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफाइन किया हुआ है, देन टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स विल बी QRS. जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्व होगा दैट विल बी द QRS. तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे इसका. ये तो कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो इस तरह से होगा. आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है जिस तरह से. अब देखिए, इसके बाद हम लोग जो है इसमें हमारे अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं. जो हमारा कम्यूटेशन ग्रुप्स बनेगा, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, उसमें अलग अलग टर्म्स आते हैं. उस टर्म्स को हम देखेंगे. देन हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक 6 पल्स जो सर्किट्स है, जिसको हम लोग गेट सर्किट भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसमें जो आप हम लोग देख रहे हैं सबसे 2-3 टर्म्स आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहला जो टर्म है वो क्या है, वॉल्व वोल्टेज रेटिंग, जिसको हम लोग जनरली VVR कहते हैं थायरिस्टर के टर्म्स में. जब हम लोग HVDC में काम करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा टर्म्स आएगा VVR.
इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज इट कैन विदस्टैंड। तो ये एक क्या है? एक पीक इनवर्स वोल्टेज जो ये विदस्टैंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्व वोल्टेज रेटिंग। जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। जो पीक इनवर्स वोल्टेज PIV को ये विदस्टैंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्व वोल्टेज रेटिंग। द वॉल्व यूटिलाइजेशन इज द रेशियो ऑफ PIV टू एवरेज DC वोल्टेज। कन्वर्टर एवरेज DC वोल्टेज, जो कन्वर्टर एवरेज DC वोल्टेज होता है VDO जो हमारा होता है, दैट विल बी इज इक्वल टू S इंटू Q अपॉन 2 पाई। S आपको पता है नंबर ऑफ थायरिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। Q आपको पता है नंबर ऑफ जो थायरिस्टर वॉल्व है। 2 पाई, हम लोग पाई से Q, इसका माइनस पाई से Q हम लोग लेके चल रहे हैं। VM cos ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी। फाइनली क्या आएगा? SQ अपॉन 2 पाई। VM हमारा कोई भी नहीं है, VM को हमने बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी को जब हमने इंटीग्रेट किया इसके रिस्पेक्ट में माइनस पाई बाई क्यू से पाई बाई क्यू, देन हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? SQ अपॉन 2 पाई VM इंटू 2 साइन पाई बाई क्यू, जब हम फाइनल डिवीजन कर रहे हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्व वोल्टेज रेटिंग। और फाइनली यहाँ पे आपके लिखा हुआ है VDO, that will be the valve voltage rating and that will define SQ divided by pi VM dot sin pi upon Q। S क्या है? नंबर ऑफ कनेक्टेड थायरिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। पाई आपको पता है कि कांस्टेंट होता है। Q क्या है? नंबर ऑफ जो हमारे पैरेलल, वो हमारे नंबर ऑफ जो थायरिस्टर वॉल्व से लगे हुए हैं वो है Q में। तो VM आपको पता है मैक्सिमम वोल्टेज जो हम इनपुट दे रहे हैं। साइन आप लोगों को पता है ही, पाई बाई क्यू आपको डिफाइन है। तो ये एक पैरामीटर है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ आपका जो हमारा कन्वर्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको बनाते टाइम ये पैरामीटर डिस्कस होता है, वॉल्व वोल्टेज रेटिंग। दूसरा आता है इसी टर्म्स में आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। इसके बारे में हम लोग देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो है, इफ Q इज इवन। अब दो तरह की बातें होगी। जो हमारा Q है, Q वाला टर्म्स आपने देखा हुआ है कि व्हाट इज द Q। Q क्या है? नंबर ऑफ थायरिस्टर वॉल्व है जो आपके उसमें है। तो थायरिस्टर वॉल्व्स जो है वो Q जो है हमारा, Q अगर इवन होगा, इन द केस ऑफ इवन, then the maximum inverse voltage occurs when the valve with a phase displacement of pi radian, pi radian means क्या हो गया? 180 degree in conducting, and this is given by PIV is equal to 2V। अगर Q की वैल्यू इवन होगी तो हमारा जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो कितना होगा? 2Vm होगा। इफ Q इज ऑड, अगर हमारा Q जो है वो ऑड नंबर हुआ, आइदर 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, जो भी, the maximum inverse voltage occurs when the valve with a phase shift of pi plus pi by Q in conducting, and this is given by peak inverse voltage is equal to 2Bm cos pi upon 2Q। तो ये वैल्यू किस केस में होगा? अगर हमारा PIV की वैल्यू 2Vm cos pi by 2Q आ रहा है, इट मीन्स हमारा Q जो है वो ऑड है। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर, आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम लोग डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू PIV अपॉन VDO। मीन्स जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है थायरिस्टर के केस में, उसमें क्या है आपका यूटिलाइजेशन के केस में अगर आप देखोगे तो थायरिस्टर वॉल्व में क्या है? जो पीक इनवर्स वोल्टेज, इट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज टू द वॉल्व वोल्टेज रेटिंग। तो Q जो नंबर ऑफ वॉल्व्स है उसके रेस्पेक्ट में अभी आपने ये दोनों वैल्यू निकाली हुई है। अब आपको PIV की वैल्यू मिल चुकी है दोनों केस में। तो आपको मैंने पिछले सर्किट में आपको मैंने ये VDO की वैल्यू भी निकाली हुई है, आपको SQ डॉट साइन पाई, SQ बाई 2 पाई आपको निकाला हुआ है मैंने इस तरह से, साइन पाई बाई Q। तो अब आप फॉर Q इज इवन के लिए PIV की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 2Vm, और अगर आप Q इज इक्वल टू आप ऑड के लिए रख देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फाइनली आपको क्या निकालना है? 3 पैरामीटर्स आपको डिस्कस करने हैं ड्यूरिंग दी अगर हम वॉल्व कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, 3 टर्म्स हमारे पास आएंगे और तीनों टर्म्स एक दूसरे से किस तरह से लिंक है ये आपने देख लिया। पहला है आपका वॉल्व वोल्टेज रेटिंग, दूसरा है आपका वॉल्व वोल्टेज रेटिंग क्या है? वो है जो हमारा एक जो वॉल्व है वो पीक इनवर्स वोल्टेज को कितना विदस्टैंड कर सकता है, दैट इज द वॉल्व वोल्टेज रेटिंग। उसके बाद आपने देखा पीक इनवर्स वोल्टेज आ गया। पीक इनवर्स वोल्टेज में 2 कंडीशन आई, Q की वैल्यू अगर हमारा ऑड है, Q की वैल्यू ओवन है, मींस Q इज द नंबर ऑफ वॉल्व्स। तो वॉल्व्स हमारा अगर ऑड है तो ये वैल्यू होगा,
अगर वॉल्व हमारा इवन है तो ये वैल्यू होगा। और लास्ट में हमने देखा यूटिलाइजेशन फैक्टर। कई बार बच्चे गेट में न्यूमेरिकल आता है या आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूटिलाइजेशन फैक्टर इन द केस ऑफ कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो वहां पे आपको क्या बताना है, वहां पे आपको बताना है कि सर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज टू द वॉल्व वोल्टेज रेटिंग, है ना। तो वो जो है आपका इन दोनों का रेशियो है, और दोनों का केस जो है फॉर क्यू इज इवन एंड फॉर क्यू इज ऑड, दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हो इजिली। अगर आपको मैंने दो वैल्यू दी है और उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन आपको पता है तो आप तीसरी वैल्यू अपने आप निकाल सकते हो। यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको निकालना है, सर मुझे पता है PIV डिवाइडेड बाय VDO। VDO क्या है, वॉल्व वोल्टेज रेटिंग है। वॉल्व वोल्टेज रेटिंग हमें पता है, सर हमें PIV पता है, तो हम दोनों के रेशियो से PIV और VDO के रेशियो से हम निकाल सकते हैं। दो कंडीशन है PIV के लिए, आपको पता होना चाहिए। फॉर द इवन वैल्यू PIV इज इक्वल टू 2BM, और इनवर्स अगर हमारा ऑड है तो V इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इवन में आप cos पाई डिवाइडेड बाय 2Q अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये ऑड के लिए वैल्यू हो जाएगा PIV। और यूटिलाइजेशन फैक्टर दोनों केस के लिए आप निकालेंगे, फॉर क्यू इज इवन के लिए अलग निकलेगा, फॉर क्यू इज ऑड के लिए अलग निकलेगा। तो गाइज ये एक था चॉइस ऑफ कन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमारे पास चॉइस है, और इसमें जो तीन पैरामीटर्स है वो हमने देखे कि क्या क्या से इसमें तीन पैरामीटर्स है। इन तीनों पैरामीटर्स को आप लोगों ने देखा और इसकी ये सारी चीज देखे। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो हम लोग करेंगे 6 पल्स कन्वर्टर, या जिसको हम लोग बेसिक ग्रेड्स सर्किट भी कहते हैं, उसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, ग्रेड्स कन्वर्टर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, उसके बारे में देखेंगे। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज अक्रॉस द कंट्री, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज में मुहैया करा दूं। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।